آج ہم اس اسٹیج سے ڈیرہ اسماعیل خان کا وہ پرانا مطالبہ جو کئی عشروں سے یہ مطالبہ تھا ہمارے ڈی آئی خان کا کہ ہمارا اپنا سرکل بنے، آج الحمدللہ ہم اس جگہ پہ پہنچے کہ آج ہم نے اس کا افتتاح کیا۔ اور میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے عارف خان سدوزئی کو، چیف پیسکو، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے چیف پیسکو کی سیٹ سنبھالتے ہی جو ہماری شروعات کی میٹنگ ہوئی تو اسی بنیاد پہ تھی کہ پہلا کام ہمارا سرکل کو بنانا ہے اور سرکل کا افتتاح کرنا ہے، اور آج الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہیں۔ اور آج اسد محمود جو ہمارے مواصلات کے وفاقی منسٹر ہے، انہوں نے اس کا افتتاح کیا، تو یہ ایک ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کو ایک تحفہ ہے۔ اور قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا پہلے دن سے اس حوالے سے ان کی کوششیں تھیں، تو آج ان کے بیٹے نے اور ہم نے مشترکہ طور پر جو اس کا افتتاح کیا، تو میں آج تمام آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مولانا برادران، مولانا برادران۔ چونکہ ہمارے لوگ، غریب لوگ انتہائی مشکل میں تھے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا بھی آپ لوگوں سے واسطہ ہے، آپ لوگوں سے تعلق ہے، روزمرہ مسائل کے حوالے سے آپ سے رابطہ رہتا ہے، تو جو تکالیف اس حوالے سے، اس سرکل کے حوالے سے ان لوگوں کو تھی، تو وہ میں جانتا ہوں اور یہ لوگ جانتے ہیں۔ اگر ان کے بل کے جرمانے کا مسئلہ ہے تو بنو جانا ہے، اگر ان کو کوئی میٹر کا مسئلہ ہے، کوئی میٹر فالٹ کا مسئلہ ہے تو بنو جانا ہے، اگر ایس سی سے کوئی منظوری لینی ہے تو بنو جانا ہے، اگر کوئی ای ایل آر کے مسئلے ہیں اور لوگوں کو جو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو مزید ٹرانسفارمر لگنے کی ضرورت ہوتی تھی تو اس کی منظوری بھی بنو سے لینی ہے۔ تو یہاں سے ہمارے جتنے لوگ یہاں سے بنو جاتے تھے، تو بنو کا اور ڈی اے خان کا آپ فاصلہ دیکھیں، اور کیا میرے خیال میں 1-2 دن تو اس پہ ضائع ہو سکتے ہیں کہ آپ اس دفتر میں جائیں اور پھر آپ وہاں سے کوئی منظوری لے سکیں یا آپ بل کا جرمانہ معاف کروا سکیں، تو یہ بہت مشکل کام تھا۔ تو ایک کام جو ایک دن میں ہو سکتا تھا تو وہ ہفتے 10 دن تک نہیں ہو سکتا تھا، تو اس مشکل سے یہ لوگ دوچار تھے۔ اور اس کے علاوہ ہماری جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا اس میں بھی ہمیں مشکل تھی کہ اگر گناہ ان کا تو وہ ہمارے سر بھی تھا، اور اگر ہمارا تھا یا نہیں تھا تو اگر ان پہ پڑتا تھا تو ظاہر ہے ان کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو اس حوالے سے یہ ضرورت تھی آج کی کہ ہم اس سرکل کو الگ سے بنائیں اور وہ سرکل الگ سے رہے، ان لوگوں کی وہ خدمت کریں، اور اس دھرتی کے اور اس ڈی آئی خان کے لوگوں کے، اس ڈویژن کے لوگوں کی خدمت، یہاں کی سرکل وہیں ان کے گھر میں بیٹھ کے ان کے مسائل کو حل کر سکے۔ جہاں تک اور مسائل ہیں جس کا ذکر چیف ایگزیکٹو نے بھی کیا، اور ان سے مسلسل جتنے بھی ہماری
ٹائم ٹو ٹائم اگر ملاقات ہوتی ہے تو اس میں ان مسائل کا ذکر ہوتا ہے اور ان مسائل کو ہم نے کس طرح حل کرنا ہے. مثال کے طور پہ لوڈ کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے گرڈ بنانا ہے, اور گرڈ کہاں کہاں کس حوالے سے کہ پہلے ہمارے پاس 66 kV گرڈ اسٹیشن تھے تو ان کو ہم نے تبدیل کیا 132 kV گرڈ اسٹیشن. جہاں پہ ضرورت تھی مزید گرڈ اسٹیشن کی تو وہاں پہ 132 گرڈ اسٹیشن ہم نے نئے بنائے. تو آج اگر چوری کی وجہ سے یا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے بجلی کی کمی کی وجہ سے اگر لوڈ شیڈنگ ہونی ہوتی ہے تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے, اور یہ ہمارے پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. ہماری دعا ہے کہ وہ مسائل بجلی کے اس طرح حل ہو جائیں کہ لوڈ شیڈنگ پاکستان میں ہو ہی نہ. اس میں ایک تقدو جاری ہے, ایک مسائل ہیں ہر حوالے سے. بجلی کے بل کے حوالے سے مسئلہ ہو سکتا ہے, بجلی کے ٹیرف کے حوالے سے مسئلہ ہو سکتا ہے, لوگوں کی جیب شاید اس طرح اجازت نہ دیتی ہو, وہ مسائل ہو سکتے ہیں. شاید اس وجہ سے چوری ہوتی ہے تو چوری کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. تو اس کی وجہ سے جو لوڈ شیڈنگ ہماری ہوتی ہے, ہماری دعا ہے کہ اس مشکل سے بھی اس قوم کو نجات ملے اور یہ لوڈ شیڈنگ اور یہ سارے مسائل ختم ہو سکیں. لیکن اگر بجلی ہو تو اس وقت لوڈ جو بجلی کا ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے, وہ پوری بجلی آنی چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے بنیادی کام کیے جس کی وجہ سے آج ڈیرہ میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تقریباً ختم. اور یہ مزید جو اس 2023 میں گرڈ اسٹیشن مکمل ہوں گے تو اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ مکمل طور پہ جو لوڈ کی وجہ سے وہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. مولانا بحران زندہ باد. جو ہمارے فیڈر اوور لوڈ ہے اس کو بھی ہم بائیفرکیشن کر رہے ہیں. پچھلے دنوں میں ہم نے 2-3 فیڈر کا افتتاح کیا اور مزید وہ بقایا جو فیڈر ہیں ان کو بھی انشاءاللہ بہت جلد مکمل کریں گے, جس کی وجہ سے بجلی کا جو فیڈر کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے. نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام زندہ باد. بڑی اور میں چیف ایگزیکٹو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ فوری طور پہ جتنے بھی سرکل کے حوالے سے جو تقسیم کار ہے وہ فوری طور پہ ہو, اور تمام عملہ جات سمیت ایکسین کے کہ جو ضرورت اس سرکل کی ہے اس کو مکمل طور پہ یہاں پہ پورا آفس بنے اور تمام مسائل جو ہے وہ یہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں حل ہو. اب دوبارہ جو ہے نا بنو جانا نہ پڑے اور یہاں ڈی آئی خان کی سرزمین پر ان لوگوں کے مسائل کا حل ان کو ملے. آج میں اس سٹیج سے آپ کی طرف سے آپ لوگوں کی طرف سے آپ کا مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اسد محمود کو باقاعدہ ڈیوٹی دی ہوئی تھی کہ جیسے تیسے آپ نے کرنا ہے. جو سی پیک کا پروگرام پچھلی حکومت کی وجہ سے اور پچھلی حکومت کے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے میں یہ لفظ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک دشمنی میں آتا ہے کہ انہوں نے سی پیک کا سارا منصوبہ روک دیا تھا اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے تمام منصوبے انہوں نے روک دیے تھے. تو یہ ملک دشمنی انہوں نے کی. لیکن الحمدللہ اب وہ سی پیک کا پروگرام جو اس وقت رک گیا تھا اور آج تقریباً 4-4.5 سال کے بعد اس سی پیک کا اگلا حصہ اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے تمام پروجیکٹ جو ہے دوبارہ نئے سرے سے وہ سٹارٹ ہوئے, جس کے ساتھ وہ حصہ بھی ہے. مولانا فضل الرحمان سے زندہ باد. مولانا فضل الرحمان سے زندہ باد. مولانا اسد محمود سے زندہ باد. مولانا لطف الرحمان سے زندہ باد.
जो हिस्सा बलूचिस्तान से कनेक्ट हो सकता था उसको मुअत्तल किए रखा ताकि उस सी पैक का भरपूर फायदा जो है वो हम न ले सकें, और उसका फायदा पूरे पाकिस्तान को होना था, सिर्फ DI खान को नहीं होना था। DI खान तो उस जमीन से 170 किलोमीटर का मोटरवे गुजर रहा है आपकी DI खान की सरजमीन से, स्टार्ट से लेकर, और जब आप बलूचिस्तान में इंटर होंगे तो तकरीबन 170 किलोमीटर का ये मोटरवे होगा। और इस वक्त जो तकरीबन, अगर मैं गलत ना हूं तो तकरीबन 50-55 किलोमीटर का ये मोटरवे का अगला टुकड़ा जो यारक से शुरू होता है और सग्गू तक जाएगा, और ये वो हिस्सा था जिसकी वजह से गवादर से लेकर इस्लामाबाद तक और आपके तमाम पंजाब और KP के मुख्तलिफ शहरों तक और चाइना तक अगर उसमें रुकावट थी तो ये 55 किलोमीटर का ये रोड का टुकड़ा था जो डिस्कनेक्ट था, जो मिसिंग लाइन थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह असद महमूद ने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने और मौलाना फजल रहमान साहब ने उसका मुत्तफ़िक़ा तौर पे जब वो उसका इफ्तिताह किया था, अब उस पे काम शुरू हो रहा है, उसका टेंडर हो चुका है, अवार्ड हो चुका है, उसकी लाइनिंग हो रही है, और उसके बाद इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि उस पे काम शुरू हो, और अनकरीब इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि बड़ी तेज़ी के साथ हमने उस पर काम करना है और हमने उसको कनेक्ट कर देना है। मैं आपको ये खुशखबरी भी साथ दे रहा हूँ कि चूँकि डेरा इस्माइल खान का इकनॉमिक जोन मंजूर था, और वो इकनॉमिक जोन जो है तात्तुल का शिकार था, और वो तभी उसको मुकम्मल किया जा सकता था जब आप ये जो मिसिंग लिंक था उसको आप कनेक्ट करते। जब वो कनेक्ट हो जाएगा तो आपका ये इकनॉमिक जोन भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। तकरीबन 4.5 साल हुकूमत PTI की रही इस सूबे में, और ये सी पैक का हिस्सा था ये इकनॉमिक जोन। 2 इकनॉमिक जोन आपके KP में बनने थे, एक मर्दान के साथ बनना था रशकई इकनॉमिक जोन, और दूसरा इकनॉमिक जोन DI खान में बनना था। लेकिन DI खान का इकनॉमिक जोन क्यों तातुल का शिकार हुआ, आज तक हम उसका फायदा क्यों नहीं उठा सके, उसकी बुनियादी वजह यह है कि सी पैक के उस तमाम प्रोग्राम को इन्होंने चादर डाल दी थी, मुअत्तल कर दिया था, रोल बैक करने की कोशिश की कि ये ख़त्म हो जाए, जिससे चाइना नाराज़ हुआ। और हम जिस तरह चाइना के साथ हमारी दोस्ती है, आज के इस मसाइल में जो आज माशी मसाइल से हमारा मुल्क दो चार है, उसमें भी चाइना ने पहल की है कि आपके अगर तमाम IMF के हवाले से मसाइल आ रहे थे तो सबसे पहले चाइना ने आपके मसले को हल करने की कोशिश की और उसको हल किया। IMF के जितने भी मुश्किल शराइत को दस्तखत करके PTI की हुकूमत ने इस मुल्क पे जुल्म डाया और इस कौम पे जुल्म डाया कि आज वो उन्हीं शराइत को बुनियाद बना के वो कहते हैं कि आपने पहले वो शराइत मुकम्मल करनी है, क्योंकि पिछली हुकूमत ने 2 दफ़ा उनके शराइत जो दस्तखत किए हुए हैं अपने उस दस्तखत के खिलाफ जाकर, अपने वादे के खिलाफ जाकर उन्होंने IMF की शराइत को सबूताज किया। शराइत किए क्यों? अगर किए तो फिर उसको पूरा करना था, इसलिए IMF का प्रोग्राम तातुल का शिकार रहा और बेइतिमादी की फिजा पैदा हुई। आज वो मुश्किल शराइत, हम जितना भी उसकी कोशिश फेडरल गवर्नमेंट करे, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, एक ट्रस्ट का फुकदान जो पैदा हुआ वो उस PTI की हुकूमत की वजह से आज वो शराइत कहते हैं कि हर सूरत में पूरा हो तब जाके हम आपको कर्जा देंगे। होना बुनियादी ये चाहिए था कि हम IMF से आज़ादी हासिल करें, IMF के शराइत से भी, IMF के कर्जों से भी। लेकिन चूंकि जिस तरह PTI ने हुकूमत की, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में जिस अंदाज में उसने बहरान पैदा किए, उससे कभी पाकिस्तान की तारीख में ये बहरान पैदा नहीं हो सकते थे। उसने सबसे पहले माशी बहरान पैदा किया, उसके बाद सियासी बहरान पैदा किया,
सियासी बहरान भी इस अंदाज में पैदा किया कि वो, बाज़ लोग कहते हैं कि वो उसकी अना, उसकी जिद आड़े आ जाती है। वो शायद खुद से जब प्राइम मिनिस्टर जी से उसको एक अदम एतमाद की तहरीक से उसको निकाला गया, एक आईनी तरीके से उसको निकाला गया, तो वो लोग समझते हैं कि वो उस जिद में आके उसने ये सारे इक़दाम किए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक एजेंडा है। जिस एजेंडे पे वो कार फरमा है, माशी तौर पर उसने 4.5 साल दौर में मुल्क को तबाही के किनारे पहुंचाया, सियासी बहरान पैदा किया इस बुनियाद पे कि आईनी बहरान भी उसके साथ पैदा होगा कि अगर मैं 2 असम्बलियों को मुअत्तल करता हूँ, 2 असम्बलियों को मैं ख़त्म करता हूँ, 2 असम्बलियों को मैं घर भेज देता हूँ जिसको कौम ने मुंतखब किया हो, और उसको जो 5 साल का मैंडेट मिला हो, और वो असम्बली हो जिसका इसके पास 2/3 अक्सरियत हो। अगर आइन ने चीफ मिनिस्टर को इजाज़त दी है असम्बली तोड़ने की, तो वो किसी वजह से दी है कि ऐसा कोई बहरान पैदा हुआ हो, कोई माशी बहरान पैदा हो गया हो, कोई ऐसा मसला पैदा हो गया हो कि जिससे मुल्क न चलता हो, ऐसा कोई मसला पैदा हुआ हो कि जिसकी वजह से असम्बली न चलती हो, उससे कोई फाइनेंस बिल पास ना होता हो, कोई लेजिस्लेशन ना होती हो, हुकूमत की कारकर्दगी और हुकूमत की गवर्नेंस अगर उसकी वजह से, असम्बली की वजह से रुक गई हो, या कोई ऐसे तातुल का शिकार हो कि उसके पास अक्सरियत किसी के पास ना हो, तो एक रास्ता था कि जिसकी वजह से आप फिर दोबारा कौम के पास जा सकते थे, और वो इस मजबूरी के तहत आप जा सकते थे। लेकिन आज कौम पूछना चाहती है, लोग पूछना चाहते हैं कि जिस असम्बली में आपको 2/3 अक्सरियत हासिल थी, वो आपने धोखाधड़ी से आइन को गलत इस्तेमाल करके आपने असम्बली को तोड़ा। क्यों तोड़ा? क्यों बहरान पैदा किया? खुद तुमने 4 सूबों के वज़राए आला को बिठाकर 4 सूबों की नुमाइंदगी वज़ीर आला करते हुए आपने प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे दस्तखत किए कि हम अगली मरदमशुमारी करेंगे, मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां होंगी, उसके बाद एक नया इंतखाब होगा। तो आपने वो असम्बली क्यों तोड़ी जिस पे आपने खुद दस्तखत किए हुए? असम्बली तोड़ के आपने बहरान पैदा किया, एक आईनी बहरान भी साथ पैदा किया, और आज अदालतों को भी घसीटा गया उसमें, और इन्हीं मसाइल में उलझाया गया। तो मैं समझता हूँ कि हर लिहाज से उसने बहरान पैदा करने की कोशिश की, और न सियासी लिहाज से, पार्लियामेंट, जमहूरी इदारों के हवाले से, आइन के हवाले से, और माशी तौर पे भी इसने मुल्क की बर्बादी की इस शख्स ने। और आज हम वो जंग लड़ रहे हैं, और आज हम वापस पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। आज उन तमाम उनकी खराबात से हम जंग लड़ रहे हैं, उनके बाकियात के साथ हम जंग लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पीडीएम की हुकूमत इंशाअल्लाह कामयाब होगी, मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करेंगे, मुल्क को इंशाअल्लाह माशी बहरान से ये पीडीएम की हुकूमत इंशाअल्लाह निकालेगी। और आज तकलीफ का टाइम है, तकलीफ का दौर है। कोशिश हमारी ये है, हमारी अपनी तरफ से, पीडीएम जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से कोशिश है कि हम किस तरह आवाम को उन तकालीफ से दूर कर सकते हैं, उन मसाइल से उनको छुटकारा दिला सकते हैं, और इन जैसे लोगों से छुटकारा दिलाया है तो कौम को भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस जैसे फितने से पाकिस्तान को निजात दिलाई है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जमीयत उलमा इस्लाम जिंदाबाद, मौलाना बरदरान जिंदाबाद, मौलाना बरदरान जिंदाबाद। मैं हमेशा जमीयत उलमा इस्लाम की कोशिश रही है, डेरा इस्माइल खान के हवाले से मैं कहता हूँ कि जितने भी बुनियादी मसाइल हो सकते हैं डेरा इस्माइल खान के, जो मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से जाने जाते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के मरहून मिन्नत होंगे। मैं आज फिर से कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने लिफ्ट कैनाल का इफ्तिताह किया है, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह उस पर काम शुरू होगा, और एक्निक से वो मंजूर हो चुका है। इनके दौर में तकरीबन 4.5 साल दौर में
बारहा इन्होंने कहा कि हम लिफ्ट कनाल शुरू करेंगे, आज तक एक ईंट भी नहीं रख सके, और ना उनका कोई करने का माइंड था, ना वो उनका कोई एजेंडा था कि हमने मुल्क और इलाके को ये तरक्की देनी है, सूबे को ये तरक्की देनी, ये उनका एजेंडा ही नहीं था। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये मंसूबा शुरू होगा और इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह DI खान की सरजमीन को एक सब्ज इनकलाब लाकर दिलाएंगे इंशाअल्लाह, और पूरे सूबे को उससे फ़ायदा होगा। ये जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आके उसने उसका इफ्तिताह किया, बहुत जल्द उसका इंशाअल्लाह शुरुआत होंगे, और DI खान की तरक्की के लिए और बहुत सारे मंसूबे जो हम चाहते हैं वो होंगे। और मुआसलात के हवाले से चूँकि असद महमूद अभी आएगा, बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि कितने रोड आपके बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं, और इंशाअल्लाह तमाम ज़िले को, हमारा ज़िला सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है, पंजाब से उसका एक सरहद मिलती है, बलूचिस्तान से मिलती है, और हमारे KP का ये आखिरी ज़िला है, और यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। और इंशाअल्लाह मौलाना साहब का वादा है कि DI खान को हम तिजारती हब बनाएंगे, और ये इंशाअल्लाह तिजारती हब इंशाअल्लाह बनेगा और इंशाअल्लाह ये टाइम आएगा आगे जब इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन में जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर हिस्सा लेगी, और भरपूर अंदाज में इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस पूरे सूबे में और पाकिस्तान में एक बेहतर नुमाइंदगी जमीयत उलमा इस्लाम इंशाअल्लाह हासिल करेगी। मैं इन्हीं अल्फाज पर एक दफ़ा फिर वो मसला नहीं है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव के पास केस आया हुआ है और कमेटी ने उसको वैसे अप्रूव हुआ है, वो होता रहेगा इंशाअल्लाह, वो हो जाएगा। मैं इन्हीं अल्फाज पर एक दफ़ा फिर चीफ एग्जीक्यूटिव का, वाबडा के तमाम ऑफिसर्स यहाँ पे बैठे हैं, और हमारे पेस्को के ऑफिसर हैं सारे, मैं उनका और अपने ज़िले के लोगों का, उनके सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भरपूर उसमें हिस्सा लिया और इस काम को पाए तकमील तक इंशाअल्लाह पहुँचाया है, और मज़ीद जो कमी है उसको मुकम्मल करेंगे। और मैं चीफ एग्जीक्यूटिव साहब से ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द यहाँ पे उसके लिए अपने ऑफिस में ज़मीन मुख्तस करके और SC का जो सर्कल का जो दफ्तर है उसकी बुनियाद रखी जाए, और बहुत जल्द उसकी बिल्डिंग जो है वो उसकी तामीर शुरू हो जाए, ताकि वो हमारे वाबड़ा के जो पेस्को के एहलकार है उनको मसाइल नहीं होंगे, लोगों को नहीं होंगे। तो ये दफ्तर बहुत ज़रूरी है उसका कि बहुत जल्द वो शुरू हो जाए। मैं इन्हीं अल्फाज पर आपसे इजाज़त चाहता हूँ।